Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. Now we will start lesson number 7 metric measure. But before starting our today's topic, first we will see what we had done in this lesson. So first we had done the recall exercise, then after we had done the metric unit. So which are the metric unit we had done? Some are the metric unit measuring into the length, some unit we are measuring into the mass, and some unit we are measuring in the capacity. Basic unit of the length is the meter, basic unit of the length is the meter, basic unit of the mass is the gram, and basic unit of the capacity is the liter. Basic unit of the capacity is the liter. So these are the basic unit. Then after we had done the measuring of the length, so which are the lower unit, which is the basic unit, and which are the higher unit. So these are we had done. Then after we had done convert the length higher to lower unit. Then after we had done convert the length lower to higher unit. Then after we had done in the last class convert the units, convert the weight lower to higher and higher to lower unit. Then after in last class we had also done conversion of capacity. So some unit are the commonly used in the capacity, liter and milliliter. These are the both are the unit is used commonly. So everyone know very well 1 liter equal to how many milliliter. So 1 liter equal to how many milliliter? 1 liter equal to 1000 milliliter. 1 liter equal to 1000 milliliter. So when we want to convert liter into the milliliter, when we are converted liter into the milliliter, so that time we are multiply by the 1000. That time we are multiply by the 1000. And when we are converted milliliter to liter, liter, so that time we are divided by 1000. So that example 1 and 2, these are the we had done in our last class. Now we will start exercise 7.5. We will solve exercise 7.5. So now here look at here example number 1, 2, this one I will solve. Example number 3, this is the homework for you. Then next example number 4 and 5 I am solving. Example number 6, this is the homework for you. So now we will start. Question number A, convert into millimeter. So now all of you look at in notebook. So now first number A, first number is the 11 liter. So that 11 liter we want to convert milliliter. हमें क्या करना है? मिलीलीटर करना है. So 1 liter equal to how many milliliter? 1 liter equal to 1000 millimeter. So now 11 liters equal to 11 multiply by 1000 milliliter. 11 multiply by 1000 equal to 11 liter multiply by 1000 milliliter. 11 multiply by 1000, 11 आ जाएगा और यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगी, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो आते हैं. 11 लिखेंगे और 3 जीरो लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मिलीलीटर. सो 11 लीटर्स इक्वल टू 11,000 मिलीलीटर. कितना हो जाएगा? 11,000 milliliter. So this one is the first number. Now second number. Third number is the homework for you. So now second number 5 liters 250 milliliter. So that both are we want to convert into the milliliter. 250 that already in the milliliter. 5 liter this we will convert it into the milliliter, then after we will add both are. So we will write here 5 liters 250 milliliters equal to 5 multiply by 1000 milliliters प्लस उसमें ऐड करेंगे हम 250 milliliters. 5 multiply by 1000 milliliters उसमें ऐड करेंगे हम 250 milliliter. 5 multiply by 1000 5000 milliliter plus 250 milliliter.
5000 milliliter plus 250 milliliter. Now both are we will add, so we'll get 5250 milliliter. Answer is 5250 milliliter. 5250 milliliter. 5250 milliliter. So this one is the second number. Now third number is homework for you. Now fourth number is Oroma. Use 15 liter 45 milliliters water to take a bath. ओरोमा है वो 15 लीटर 45 मिलीलीटर वाटर लेती है बात करने के लिए. तो उसने कितने मिलीलीटर वाटर को यूज़ किया है वो लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे, 15 लीटर 45 मिलीलीटर्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स प्लस 45 मिलीलीटर. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा, 15000 मिलीलीटर. उसमें हम 45 मिलीलीटर्स को ऐड कर देंगे. सो 15 प्लस 45 15045 milliliter. We will get answer 15,045 milliliter. So here is 15,045 milliliter. तो वो बात के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं, 15,045 milliliter. Then next example, 5 number 6 is the homework for you. So 5 number is I store drinking water. I store drinking water in a large bottle of 19 liter 660 milliliters capacity. तो ये जो बॉटल है वो उसकी कैपेसिटी की है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी कैपेसिटी कितने हैं, 19 लीटर 600 मिलीलीटर्स है. तो हमें निकालना है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितने मिलीलीटर्स की है, वो कितने मिलीलीटर्स की है. तो हम क्या करेंगे, 16 लीटर 16 नहीं 19 लीटर 660 मिलीलीटर इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर प्लस 660 मिलीलीटर. 19 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर प्लस 660 मिलीलीटर. So 19 multiplied by 1000, how much, 19,000 milliliter plus 660 milliliter. So both we are adding, so 19,660 milliliter. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19,660 मिलीलीटर. 19,660 मिलीलीटर. तो इसका आंसर कितना है, 19,660 milliliter. 19,660 milliliter. So this is the example number 5. Now example number 6. This is the homework for you. Now question number 2. Convert the liters and milliliters. अभी हमने क्या किया था, लीटर्स दिया था, मिलीलीटर्स में कन्वर्ट किया था. अभी हमें लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 के साथ. क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे. कन्वर्ट इनटू द लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. सो नाउ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, सेकंड नंबर का आपको होमवर्क है. फर्स्ट थर्ड आई एम सॉल्विंग हियर. देन आफ्टर 6 number also homework for you. 4, 5,
First and third I am solving. Second and sixth, these are the homework for you. So now we will start first number. First number B. First number 6000 milliliters equal to how many liters and how many milliliters. 6000 मिलीलीटर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6000 मिलीलीटर्स. हमें लीटर्स और मिलीलीटर्स में करना है, तो 6000 लिख देंगे और डिवाइड करेंगे 1000 और यहाँ पे लीटर्स लिख देंगे. ठीक है, तो 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे हम 30 पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे L लिख देंगे. तो जो पॉइंट वाला पहले नंबर है वो हो जाएगा लीटर एंड 00 हमारा मिली लीटर्स हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या है, 6 लीटर 00 मिली लीटर. 6 लीटर 00 मिली लीटर्स. देन second number is the homework for you. Now third number में है 15,000 मिलीलीटर्स. तो हमें लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो सेम जैसे अभी किया था सेम वैसे करना है. 15,000 मिलीलीटर्स इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पे लीटर लिख देंगे. ठीक है, 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो. तो 3 जीरो पहले हम पॉइंट देंगे, यहाँ पे 00 एंड यहाँ पे लीटर. सो लीटर कितना है, 15 लीटर्स है और मिलीलीटर्स में क्या है, 00 मिलीलीटर. तो हमारा आंसर क्या है, 15 लीटर 00 मिलीलीटर. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 इज Anupama's car has a petrol tank. Anupama has petrol tank of capacity 56,765 मिलीलीटर. तो हमें निकालना है कि वो कितने लीटर्स और कितने मिलीलीटर्स पेट्रोल टैंक है. अनुपमा कार है, अनुपमा की कार है, उसकी जो कैपेसिटी है टैंक की वो कितनी है, 56,765 मिलीलीटर्स है. तो हमें करना है कि वो कितने लीटर्स की है और कितने मिलीलीटर्स है. तो सेम जैसे अभी किया था 56,765 मिलीलीटर से हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ. 56,765 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पे हम लिख देंगे लीटर्स. 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो पहले हम पॉइंट देंगे. 56.765 लीटर्स. 56 हमारा हो जाएगा लीटर्स एंड 765 हो जाएगा मिलीलीटर्स. सो अनुपमा कार हैज़ अ पेट्रोल टैंक. उसके जो कार है उसकी पेट्रोल की टैंक कितनी है, 56 लीटर और 765 मिलीलीटर्स उसकी कैपेसिटी है. कितनी है, 56 लीटर्स 765 मिलीलीटर्स. कितनी है, 56 लीटर्स 765 मिलीलीटर. सो दिस इज 4th नंबर. नाउ 5 नंबर. 6 इज द होमवर्क फॉर यू. Nasir made 7,055 milliliter of juice for a party. नासिर ने क्या किया है, मेड अ जूस बनाया है पार्टी के लिए. कितना किया है, 7,055 मिलीलीटर्स किया. तो उसने कितने लीटर्स का जूस बनाया है वो निकाला है. तो हम सेम मेथड से करेंगे. यहाँ पे लिख देंगे 7,055
milliliters equal to 7055 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पे लिख देंगे लीटर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे लीटर। सो नाउ हम 3 डिजिट पहले पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 7.055 लीटर्स हो जाएगा। तो 7 इज द लीटर एंड 055 मिली लीटर। अगर हम 0 भी नहीं लिखेगा तो चलेगा, 7 लीटर 55 मिली लीटर। तो यहाँ पे जो आंसर लिख रही है वहाँ पे मैं 0 नहीं लिखूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 लीटर 55 मिली लीटर, 7 लीटर 55 मिली लीटर। So this one is the example number 5. Now example number 6, this is the homework for you. This one is the homework for you. Now we will start our next topic. So our next topic is addition in the matrix system. Addition in the matrix system. So matrix जैसे हम डेसिमल में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सेम उसी की तरह ही है। राइट द मेजरमेंट टू ऐड द कॉलम्स अंडर द करेक्ट यूनिट टू अवॉइड द कंफ्यूज रिटर्न मीटर्स, millimeters and gram in the 3 digit, that is write 58 mg. mg means milligram, mg 0.58 mg. Then centimeters 2 digit and 5 centimeter and 0.5 centimeter. अगर हमें सेंटीमीटर लिखना है तो हम 0.5 सेंटीमीटर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर के जगह पे, और मिलीग्राम को लिखना है तो 0.58 ग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे एडिशन है, ऐड 48 लीटर 360 मिलीलीटर एंड 64 लीटर 90 मिलीलीटर। तो हमें ऐड करना है, ठीक है। 90 है तो यहाँ पे देखो 90 को 0 सामने लगा के 90 लिखा है, अगर यहाँ पे 90 लिखते तो वो गलत हो जाता है। तो 48 360 और 64 और 090 है, 0 + 0 0। नाउ 6 + 9 इज द 15, 15 = 5, 1 इज द कैरी, 3 + 1 4। नाउ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 8 + 4 12, 12 = 2, 1 इज द कैरी, 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो हमें आंसर कितना मिल गया है, 112 लीटर 450 मिलीलीटर्स। तो जो मिलीलीटर्स का है वो मिलीलीटर्स के नीचे हम एडिशन करेंगे, जो लीटर का है वो लीटर के नीचे लिख के हम एडिशन करेंगे। अगर कैरी होता है तो हम कैरी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 28 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर्स, 28 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर्स है, ठीक है। यहाँ पे दोनों भी 1 डिजिट का है, 28 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर के नीचे लिखते हैं, 12 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर्स के। मिलीमीटर्स मतलब क्या होता है, 1 डिजिट का ही होता है। 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर्स होता है। अगर हम पॉइंट देंगे तो 1 डिजिट के बाद ही देते हैं। तो यहाँ पे 8 9 है, 8 + 9 17, 17 = 7, 1 इज द कैरी। सो 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 = 1, 1 इज द कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 1 4, 3 + 1 4। तो आंसर कितना हो गया है, 41 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, ऐड द 32 मीटर 78 सेंटीमीटर एंड 48 मीटर 35 सेंटीमीटर। ऑल्सो फिल द ब्लैंक्स। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी वो हमें फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 78 एंड 35 को, 78 और 35 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे लिखा है ऐड द सेंटीमीटर। पहले सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, 78 + 35 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 8 + 5 13 = 3, 1 इज द कैरी। देन 7 + 3 10, 10 + 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 113। यहाँ पे हमने लिख दिया है 113। नाउ 113 में 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 1 में सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया है। सेंटीमीटर हमने क्या किया है, 1 को कैरी किया है, और सेंटीमीटर में कितना है, 13 है। सॉरी, यहाँ पे 113
3 लिख देंगे और यहाँ पे हम सेंटीमीटर में 1 लिख देंगे और मीटर में लिख देंगे 13, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने क्या लिखा है 13 लिखा है और 1 मीटर में कैरी किया, तो यहाँ पे 113 इक्वल टू 1 जो हमने कैरी किया है मीटर में वो यहाँ पे लिख दिया है, और जो सेंटीमीटर का आंसर है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है 13। देन राइट सेंटीमीटर इन द कॉलम एंड कॉलम कैरी एम टू बी कॉलम। यहाँ पे क्या हो गया है 1 कैरी हो गया है, 1 क्या हो गया है राइट 13 इन द कौन से कॉलम में लिखा है, इन द सेंटीमीटर कॉलम। 13 सेंटीमीटर इन द सेंटीमीटर कॉलम, जो 13 है वो हमने कहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर कॉलम में लिखा है। और कैरी कितना किया है 1 हमने कहाँ पे कैरी किया है 1 इज कैरी ऑन द मीटर कॉलम। जो 1 है हमने कैरी किया है वो कहाँ पे किया है मीटर के कॉलम में। 13 कहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर में और 1 हमने कैरी किया है कहाँ पे मीटर में कैरी। ऐड द मीटर्स, अभी मीटर्स को ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे 32, 48 एंड 1, तीनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 सा 1 इज द कैरी, 1 + 3 4, 4 + 4 81। तो इसका आंसर कितना आ गया है 81। Here answer is 81. Here answer is 81. So write in meter. मीटर में कितना आ गया है, राइट मीटर इन 81 सेंटीमीटर 81 मीटर्स इन द मीटर्स कॉलम। जो 81 आया है वो कौन से कॉलम में आया है, मीटर्स के कॉलम में आ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया 81 और यहाँ पे मीटर्स कॉलम। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग एडिशन। कंप्लीट द फॉलोइंग एडिशन, तो यहाँ पे ग्राम में क्या क्या है 360 एंड 850, 360 एंड 850, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 + 0 0, 6 + 5 11, 11 सा 1 इज द कैरी। देन 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 सा 2 1 इज द कैरी। तो यहाँ पे जो कैरी हो गया ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आता है 1 2 1 0, जो हमने कैरी किया था वो यहाँ पे आएगा 1 2 1 0। अभी यहाँ पे ग्राम में क्या आएगा, ग्राम में क्या लिखेंगे हम 1 2 1 0, 1 2 1 0। तो हमने किलोग्राम में क्या कैरी किया है 1 को कैरी किया है, किलोग्राम में हमने क्या किया है 1 को कैरी किया है, और ग्राम में कितना लिख दिया है 110 ग्राम। ग्राम में कितना लिख दिया है 100 ग्राम लिखे। जो कैरी करेंगे वो यहाँ पे लिख दिया है सामने, और जो कैरी है वो कहाँ पे कैरी किया हमने किलोग्राम में, तो यहाँ पे किलोग्राम हो गया, और 110 कहाँ पे आ गया है ग्राम में आ गया है। राइट एंड कैरी, क्या राइट किया हमने यहाँ पे क्या राइट किया है 210, एंड कैरी किलोग्राम में क्या किया है 1 को हमने कैरी किया है, राइट 210 इन द ग्राम एंड 1 इज कैरी ऑन द किलोग्राम। देन सेकंड नंबर का एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन किसकी होंगी 11 12 एंड 1 की एडिशन होगी, 11 12 एंड 1 तीनों की एडिशन होगी। सो 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड 1 + 1 2, तो इसका आंसर कितना आ गया है 24। तो हमें आंसर कितना मिल गया है 24 किलोग्राम 210 ग्राम, 24 किलोग्राम 210, 24 किलोग्राम 210 ग्राम। सो दिस आर द एडिशन। नाउ exercise 7.6. So from the exercise 7.6 now I am solving here 1 2 and 3 4 5, these are the homework for you, 3 4 and 5, these are the homework for you. And now I am solving here example number 1 and 2. now जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है जगह खाली है वहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। सारे इसमें मैं क्या कर रही हूँ 0 बढ़ा के दे रही हूँ, तो आप भी क्या करो 0 लगा दें। जहाँ पे आपको खाली लगता है वहाँ पे 0 लगा दें। वाई 0, अगर हम 0 ऐड करेंगे तो सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है 0 0 ऐड कर दिया। नाउ 6 + 5,
6 plus 5, 11, 11 is 1, 1 is the carry. Then 4 plus 8, 12, 12 plus 1, 13, 13 is 3, 1 is the carry. Then 1 plus 6, 7, 7 plus 7, 14, 14 is 4, 1 is the carry. Then 1 plus 2, otherwise 1 plus 9, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 2, 18, 18 is 8, 1 is the carry. Then 1 plus 5, 6, 6 plus 7, 13. तो इसका आंसर कितना हो गया है 13, 100. So answer is 13, 138, 431. तो इसका आंसर कितना है 138 लीटर 431 मिली लीटर. Now example number 2. 8 plus 5, 13, 13 is 3, carry 1. 8 plus 5, 13, 13 is 3, 1 is the carry. 1 plus 9, 10, 10 plus 4, 14 is 4, 1 is the carry. Then 1 plus 6, 7, 7 plus 7, 14, 14 plus 5, 19, 19 is 9, 1 is the carry. 1 plus 5, 6, 6 plus 1, 7. So answer is 79 meters and 43 centimeters. 79 meters 43 milliliters. Now example number 3, 4 and 5. These are the homework for you. Now example number 6. This we will be seeing in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.